Hello everyone, we are doing chapter number 5, Principles of Inheritance and Variations, part 3, class 12th, Biology. In this video, we are going to cover the topic genetic disorders. What are genetic disorders? Genetic disorders are the disorders due to change in genes or chromosomes. As you all know that genes control many characters in the body, and if there is any defect in the gene or any defect in the number of chromosomes, it may lead to disease, it may lead to disorder, and these disorders tend to move from one generation to another. These are called as genetic disorders. There are two categories of genetic disorders here: Mendelian disorders and chromosomal disorders. Examples of Mendelian disorders are hemophilia, sickle cell anemia, color blindness, phenylketonuria, thalassemia, and cystic fibrosis. And chromosomal disorders are Down syndrome, Klinefelter syndrome, and Turner syndrome. Mendelian disorders. The disorders caused by alteration or mutation in a single gene. अगर एक ही जीन में कोई alteration हो जाए, कोई change आ जाए, कोई mutation हो जाए, then there will be a disorder. Okay, and these disorders are Mendelian disorders. Examples are hemophilia, color blindness, sickle cell anemia, phenylketonuria, thalassemia, and cystic fibrosis. And the most important thing is the pattern of inheritance of these Mendelian disorders can be traced in the family by pedigree analysis. किस तरह से ये inherit होते हैं family में from one generation to another, इसको trace किया जा सकता है किसी भी family के अंदर by pedigree analysis. We make the pedigree charts of the family for a particular disease. There are two charts given in front of you. Before going into the detail, let me tell you what this circle means, what this square means. Circles are for females and squares are for males. And if they are shaded, if they are colored, means red color अगर हमने कर दिया है, it means they are affected. Affected female, affected male. And if they are light blue color, without any color, not shaded, they are non-affected persons in the family. Okay? नॉन अफेक्टेड हो सकते हैं, दे माइट बी द कैरियर ऑफ अ डिजीज. यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है पेडिग्री एनालिसिस ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट. एग्जाम्पल ऑफ द डिजीज इज मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी. इसमें मसल्स की डिस्ट्रॉफी हो जाती है, मसल्स वीक हो जाती हैं, डिजेनरेट होने लगती हैं, एंड इट इज़ एन ऑटोसोमल. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट, कैसे आइडेंटिफाई करोगी कि ये पेडिग्री एनालिसिस के अंदर पेडिग्री चार्ट में डिजीज़ जो है वो ऑटोसोमल है. अगर कोई डिजीज़ ऑटोसोमल होगी तो वो फीमेल और मेल दोनों में अपीयर होगी. यहाँ पर स्क्वायर जो है वो भी रेड है, सर्कल भी रेड है, तो ये ऑटोसोमल हो गया. और ये कैसे पता करें कि ये डोमिनेंट है? इट मीन्स देयर इज़ नो स्किप इन जनरेशन. हर जनरेशन में ये बीमारी दिखाई देगी. सो मायोटोनिक dystrophy is an autosomal dominant trait. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर द डिजीज इज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट. ऑटोसोमल है क्योंकि मेल फीमेल दोनों में दिखाई दे रहा है, दोनों रेड हैं, मेल भी रेड है, फीमेल भी रेड कलर का दिखाई दे रहा है. बट इट इज़ रिसेसिव बिकॉज यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं स्टार्टिंग में, parents are not showing any disease, they might be the carrier, but their children are showing the defect. It means एक generation skip हो गई है. If there is a skip in the generation, the trait is recessive. Example is sickle cell anemia. यहाँ एक क्वेश्चन है आपके सामने, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस तरीके का ट्रेट है. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, पहले सर्कल भी शेडेड है, स्क्वायर भी शेडेड है, तो ये ऑटोसोमल हो गया. इट इज़ नॉट सेक्स लिंक्ड. सेकेंड, इट इज़ डोमिनेंट. फर्स्ट जनरेशन में भी दिखाई दे रहा है डिजीज़, सेकेंड जनरेशन में भी दिखाई दे रही है, थर्ड जनरेशन में भी दिखाई दे रही है. तो इट इज़ एन ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट.
Now let us start with the diseases. First is hemophilia. It is a sex-linked recessive disease. Means इसके जो जीन है वो X क्रोमोसोम पर होता है, X लिंक्ड है और रिसेसिव भी है. In this protein involved in the blood clotting is affected. जो ब्लड क्लॉट करने वाले प्रोटीन्स होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में जो हेल्प करते हैं, वो अफेक्टेड हो जाते हैं एंड ब्लड इज अनेबल टू क्लॉट. अगर ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो छोटी सी चोट से भी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगा एंड द पर्सन में डाई विद अ स्मॉल कट ऑल्सो. एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ एलील, कैपिटल H एंड स्मॉल h. यहाँ पर बोर्ड, इसमें चेकर बोर्ड पे देखिए आप, X दोनों पर कैपिटल H है. X कैपिटल H फीमेल है, नॉर्मल है, बिकॉज कैपिटल H इज डोमिनेंट. सेकंड में देखिए कैपिटल H X पर कैपिटल H है, X पर स्मॉल h है. यहाँ पर फीमेल है, हेट्रोजाइगस है, और ये फीमेल अपने सन्स को ये जीन ट्रांसफ़र करेगी, डिजीज ट्रांसफ़र करेगी. थर्ड इज अ हीमोफिलिक फीमेल. बोथ आर रिसेसिव, इकट्ठे हो गए स्मॉल h, तो दिस इज अ फीमेल हीमोफिलिक. नॉर्मल मेल X कैपिटल H एंड Y एंड हीमोफिलिक मेल X स्मॉल h एंड Y. इन फीमेल्स हीमोफीलिया इज वेरी रेयर, बहुत कम दिखाई देती है फीमेल्स के अंदर हीमोफीलिया डिजीज. वाई? बिकॉज हीमोफिलिक फीमेल होने के लिए सबसे पहला मदर का कैरियर होना ज़रूरी है और जो फादर है वो हीमोफिलिक होना ज़रूरी है. अगर फादर हीमोफिलिक नहीं है तो वो जो फीमेल है, जो गर्ल चाइल्ड होगा, उसमें ये डिजीज़ नहीं आ पाएगी. बट फादर हीमोफिलिक नहीं होगा बिकॉज जो सन्स होते हैं, जो बॉयज़ होते हैं, वो उस एज तक पहुंच ही नहीं पाते. दे आर अनवायबल इन द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ. They cannot survive for such a long time. यहाँ एग्जाम्पल देखिए हीमोफीलिया का. क्रॉस बनाया गया है, कैरियर फीमेल है, स्मॉल h है एक X पर, और नॉर्मल मेल है. फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द गेमिट्स, मेल गेमिट एंड फीमेल गेमिट्स, एंड मेक द क्रॉस बिटवीन द गेमिट्स. You will get normal female first, normal male second, carrier female third, and the hemophilic male फोर्थ. एक और एग्जाम्पल आपके सामने है, एक क्वेश्चन है आपके लिए, आपको आइडेंटिफाई करना है ये ट्रेट. आप देखिए यहाँ पर ओनली स्क्वायर्स आर कलर्ड, तो यानी तो सेक्स लिंक्ड हो गया, ऑटोसोमल तो नहीं है. स्किप जनरेशन हो रही है. ऊपर सबसे पहला जो है मदर फादर जो है, दे आर नॉट शोइंग एनी डिजीज, तो इट मीन्स इट इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट. एग्जाम्पल हीमोफीलिया का लिख सकते हो. Next sex-linked disease is color blindness. It is a sex-linked, X-linked recessive disorder due to the defect in either red or green cone of eye. हमारी आईज में रेड कोन्स होते हैं, ग्रीन कोन्स होते हैं जो कलर को आइडेंटिफाई करते हैं. हम इतने सारे कलर्स को देख पाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कोन्स. अगर इसमें कोई डिफेक्ट आ जाए तो क्या होगा? द पर्सन विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश द कलर्स, और इट इज ड्यू टू द म्यूटेशन इन सम जीन्स ऑन X क्रोमोसोम. और ये देखा गया है कि 8% मेल्स में ये डिजीज़ देखी जाती है और 0.4% फीमेल्स में ये डिजीज़ देखी जाती है. दिस इज ड्यू टू द जीन्स आर X लिंक्ड. यहाँ पर एक दो डायग्राम बने हुए हैं, देखिए. ऊपर नॉर्मल कलर विजन में वो ग्रीन कलर की कैप है, येलो कलर की टी शर्ट है और रेड कलर के शूज़ हैं. बट अगर कलर ब्लाइंड कोई पर्सन है तो वो ये कलर देखो कैसे देख रहा है. ग्रीन भी प्रॉपर ग्रीन नहीं है और रेड शूज़ को भी ग्रीन देख रहा है. द पर्सन इज कलर ब्लाइंड. अब आपके सामने एक सर्कल बना हुआ है, उसके ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है. आप इस नंबर को आइडेंटिफाई करिए और बॉक्स में लिखिए नीचे कि ये नंबर कौन सा है. अगर आप इस नंबर को ठीक ठीक पढ़कर लिख देते हो, इट मीन्स यू आर नॉट कलर ब्लाइंड. कलर ब्लाइंड को दिखाने के लिए, ब्लाइंडनेस को दिखाने के लिए यहाँ पर दो डायग्राम्स बने हुए हैं आपके सामने. पहला फर्स्ट डायग्राम मैं लेफ्ट हैंड साइड वाला बता रही हूँ.
कैरियर वुमेन है, कैरियर वुमेन में आधा रेड और आधा वाइट है, यानी 1X क्रोमोसोम पर रेड कलर है, 1X क्रोमोसोम पर वाइट है, एंड नॉर्मल मेल इज रेड कलर। और क्रॉस में जो ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे, जो इनके चिल्ड्रन होंगे, वो नॉर्मल फीमेल, कैरियर फीमेल, नॉर्मल मेल एंड कलर ब्लाइंड मेल। मेल कलर ब्लाइंड होगा यहाँ पर। फीमेल कब कलर ब्लाइंड होगा? जब फादर कलर ब्लाइंड होगा। दूसरे वाले डायग्राम पर आ जाइए, वुमेन कैरियर है और मैन कलर ब्लाइंड है, दोनों का क्रॉस करिए, यू विल गेट कैरियर फीमेल, कलर ब्लाइंड फीमेल, क्योंकि दोनों वाइट वाले इकट्ठे हो गए हैं क्रोमोसोम्स, एक्स क्रोमोसोम्स, नॉर्मल मेल एंड कलर ब्लाइंड मेल्स। इसको दिखाने के लिए आप इस तरह से बनाइएगा अपनी कॉपीज के अंदर कलर ब्लाइंडनेस को। एक्स कैपिटल सी, एक्स स्मॉल सी, ये कैरियर फीमेल है और नॉर्मल मेल से क्रॉस कराया गया है एक्स कैपिटल सी एंड वाई। मेक द गेमीट्स, आफ्टर मेकिंग द गेमीट्स मेक द क्रॉस। फर्स्ट इज नॉर्मल फीमेल, सेकेंड इज नॉर्मल मेल, थर्ड इज अ कैरियर फीमेल जो आगे पास ऑन कर सकती है अपने जीन को, एंड कलर ब्लाइंड मेल इज 1, लास्ट वाला। इसमें इस वाले डायग्राम में कैरियर फीमेल है और कलर ब्लाइंड मेल है। गेमिट्स बन गए हैं, बताइए विच वन आर द फीमेल गेमिट्स, विच वन आर द मेल गेमिट्स। ओके, एंड देन राइट डाउन कि कौन सा फीमेल, ये कैरियर है या नॉर्मल है या कैरियर मेल है या नॉर्मल मेल है। किस तरह के मेल और फीमेल्स आपको मिलेंगे, यू हैव टू राइट डाउन हेयर। नेक्स्ट डिजीज, नाउ वी कम टू ऑटोसोमल डिजीजेस। ये आपको क्लियर पता है कि वी हैव 46 क्रोमोसोम इन ईच सेल। आउट ऑफ दिस 46 क्रोमोसोम 2 आर सेक्स सेल्स जो सेक्स को डिफाइन करते हैं, एंड 22 आर ऑटोसोम्स। इन 22 ऑटोसोम्स में कोई डिफेक्ट होता है, दे आर कॉल्ड एज ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स। दिस इज एन ऑटोसोमल, सिकल सेल एनीमिया इज एन ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। आगे जनरेशन में कब पास ऑन होगा? जब मदर और फादर दोनों हेट्रोजाइगस होंगे, दोनों कैरियर होंगे, एटलीस्ट 1 एलील इनका कैरियर होगा, 1 एलील इसमें रिसेसिव होगा। द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ एलील HBA एंड HBS। अगर दोनों HBA और HBA है तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट है एंड द पर्सन इज नॉर्मल। इफ इट इज HBA एंड HBS हेट्रोजाइगस है, कैरियर हो गया सिकल सेल ट्रेट का, कैरी कर रहा है जीन को। एंड होमोजाइगस रिसेसिव HBS एंड HBS, दिस पर्सन इज एन अफेक्टेड पर्सन हैविंग द सिकल सेल एनीमिया। कैसे होता है सिकल सेल एनीमिया में, क्या होता है? हीमोग्लोबिन में आपको पता है 2 तरीके की चेन होती हैं, एक अल्फा ग्लोबिन, एक बीटा ग्लोबिन। बीटा ग्लोबिन की 6th पोजीशन पर नॉर्मल केस में ग्लूटामिक एसिड होता है। डायग्राम देखिए ऊपर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पर GLU लिखा हुआ है ऊपर पर्पल कलर का। दिस इज ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट ऑन द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब इस ग्लूटामिक एसिड को कोई रिप्लेस कर दे, और कौन रिप्लेस करेगा? वेलिन। तो वो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन हो गया, डिफेक्टिव बीटा ग्लोबिन हो गया। और ये कब होगा? जब GAG कोड की जगह GUG कोड आ जाएगा। GAG कोड जो है वो ग्लूटामिक एसिड को आइडेंटिफाई करता है, और GUG कोड आ जाता है तो वो वेलिन को आइडेंटिफाई करेगा, और जो ग्लूटामिक एसिड की पोजीशन वेलिन ले लेगा। ऊपर लिखा हुआ है GAG चेंज टू GUG, चेंज हो गया है यहाँ पर 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन। अगर ये चेंज हो जाता है, डिफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन हो जाता है, तो रेड ब्लड सेल की शेप भी बदल जाती है। शेप कैसी होती है? नॉर्मल, बाई कनकेव। बट जैसे ही इसमें डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बनता है, द शेप बिकम्स सिकल लाइक। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जिस पर्सन को सिकल सेल एनीमिया होता है उनको मलेरिया नहीं होता। वाई? बिकॉज मलेरिया का जो मलेरियल पैरासाइट है उसको सर्वाइव करने के लिए, उसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए नॉर्मल रेड ब्लड सेल चाहिए, और ये तो सिकल शेप हो गया, तो इनको मलेरिया नहीं होगा। नेक्स्ट
diseases, autosomal recessive trait is phenylketonuria. यहाँ पर दो रे डायग्राम बने हुए हैं, एक में लिखा हुआ है इन नॉर्मल पर्सन, एक पर लिखा हुआ है इन PKU पेशेंट्स। क्या होता है नॉर्मल पर्सन में, क्या होता है, एक एंजाइम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, जो एक जीन जो इसको बनाता है। अगर उस जीन में डिफेक्ट आ जाए तो ये एंजाइम नहीं बनेगा, एंजाइम नहीं बनेगा तो फिनाइल एलानिन विल नॉट बी एबल टू कन्वर्ट इनटू टायरोसिन। तो फिर क्या होगा, फिनाइल PKU पेशेंट में क्या होगा, फिनाइल एलानिन विल कन्वर्ट इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड। ओके, अब फिनाइल पायरुविक एसिड इकट्ठा होने लगा, एक्यूमुलेट होने लगा, वो ब्रेन में जाकर एक्यूमुलेट हो जाता है एंड इट विल लीड टू मेंटल रिटार्डेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ये एक्सक्रीट होता रहता है थ्रू द यूरिन बिकॉज इट इज़ नॉट एब्जॉर्ब बाय द किडनीज। पुअर एब्जॉर्प्शन है इसका किडनी से। नेक्स्ट डिजीज है थैलेसीमिया। दिस इज ऑल्सो ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। इट इज ट्रांसमिटेड अगेन, जैसे कि रिसेसिव है, ऑटोसोमल है, तो अनअफेक्टेड कैरियर पेरेंट्स होने ज़रूरी हैं। ये ध्यान रखिए, पेरेंट्स को दिखाई नहीं दे रहा कि उनको बीमारी है बट वो कैरियर हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तब ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव जीन जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। इट इज़ ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन। और क्यों होता है, क्या होता है थैलेसीमिया में, यहाँ पर अल्फा चेन और बीटा चेन दोनों ही हीमोग्लोबिन की, उनका सिंथेसिस पुअर हो जाता है, कम हो जाता है। तो थैलेसीमिया एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है जिसमें हीमोग्लोबिन कम बन रहा है, और सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है जिसमें हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव बन रहा है। थैलेसीमिया दो तरीके का होता है, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। इन अल्फा थैलेसीमिया अल्फा ग्लोबिन चेन इज अनेबल टू फॉर्म, पूरा नहीं बन पाता, कंप्लीट नहीं बन पाता, एंड द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज कंट्रोल्ड बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन्स। ये आपको याद करने हैं, HbA1 एंड HbA2 वेरी क्लोजली लिंक्ड, दे टेंड टू गो टुगेदर एंड दे आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 16। याद रखिए नंबर 16, अल्फा थैलेसीमिया 16 क्रोमोसोम। और अगर इसमें एक जीन में, दो में, तीन में, चार में, इनमें किसी में भी डिफेक्ट आ जाए, म्यूटेशन हो जाए, तो उतना ही कम अल्फा ग्लोबिन बनेगा। सेकंड, बीटा थैलेसीमिया, इसमें बीटा ग्लोबिन चेन अफेक्ट हो जाती है, बीटा ग्लोबिन चेन नहीं बन पा रही। इसको कौन कंट्रोल कर रहा है बीटा ग्लोबिन चेन को बनने में, HBB जीन है, सिंगल जीन है, and it is present on the chromosome number 11. If one gene or both the genes are affected, तो उसमें बीटा ग्लोबिन चेन बनना कम हो जाएगा and this will lead to beta thalassemia. Now next come to now chromosomal disorders. अगर क्रोमोसोम का नंबर कम हो जाए, क्रोमोसोम का नंबर ज़्यादा हो जाए, या उनका कोई अरेंजमेंट एबनॉर्मल हो जाए, this will lead to chromosomal disorders. Two types are there chromosomal disorders, aneuploidy and polyploidy. Aneuploidy में क्या होता है, there is a gain or loss of chromosome due to failure of segregation of chromatids during cell division. Cell division के दौरान chromatids अलग अलग हो जाते हैं, segregate हो जाते हैं, लेकिन अगर ये सेग्रीगेट ना हो पाए, फेलियर हो जाए इनके सेग्रीगेशन का, तो क्रोमोसोम का नंबर कम या ज़्यादा हो जाता है एंड दिस विल लीड टू कंडीशन एन्यूप्लॉइडी। यहाँ पर दो डायग्राम है, ए और बी। ए में बिल्कुल नॉर्मल केस में चल रहा है, फर्स्ट सेल है, मियोसिस हो रहा है फर्स्ट सेल के अंदर, उसमें दो क्रोमोसोम हैं, दो क्रोमोसोम में पहले वाले क्रोमोसोम में ऑरेंज वाला जो है 4 क्रोमेटिड है, दूसरे वाले में भी 4 क्रोमेटिड्स हैं, और ये सेपरेट होंगे, 4 गेमीट्स बनेंगे, 4 सेल्स बनेंगे, और चारों ब्लू अलग अलग चले गए 4 सेल में, चारों ऑरेंज क्रोमेटिड्स अलग अलग चले गए 4 सेल्स के अंदर। तो 4 सेल्स आर फॉर्म नॉर्मल विथ 2 क्रोमेटिड्स इन ईच सेल। लेकिन इन बी केस में आइए, यहाँ पर जो क्रोमेटिड्स हैं दे आर अनेबल टू सेपरेट। थर्ड स्टेज पर देखिए, जो
3 क्रोमेटिड्स एक साइड आ गया और एक क्रोमेटिड ऑरेंज वाला एक साइड रह गया, तो लास्ट में जब 4 सेल बने तो फर्स्ट सेल में एक ऑरेंज एक्स्ट्रा है तो n+1 हो गया, दूसरे में n नंबर है, नॉर्मल है, और तीसरे में n-1 हो गया, एंड द लास्ट वन इज अगेन द नॉर्मल. सो दिस इज हाउ द एन्यूप्लॉइडी टेक्स प्लेस. एन्यूप्लॉइडी इज ऑफ 4 टाइप्स. फर्स्ट इज नलीसोमी. इसमें अ क्रोमोसोम पेयर इज लॉस्ट, पूरा एक पेयर लॉस्ट हो जाएगा. सपोज हमारे पास 1 से लेकर 22 ऑटोसोम्स हैं, तो उसमें से 10th पेयर, 11th पेयर, 12th पेयर, कोई भी वन सेट पूरा क्रोमोसोम का 1 पेयर जो है पूरा लॉस हो गया. यानी 46 में से 2 माइनस कर दीजिए, 44 क्रोमोसोम रह गए. नलीसोमी. मोनोसोमी में ओनली 1 क्रोमोसोम इज लॉस्ट, तो 46 माइनस 1 45. ट्राइसोमी में 1 एडिशनल क्रोमोसोम इज देयर, तो इसमें 2n+1 मीन्स 46 + 1 47 क्रोमोसोम्स हैं. टेट्रासोमी में 48 क्रोमोसोम हो जाएंगे, 2 क्रोमोसोम एडिशनल आ गए हैं. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन्यूप्लॉइडी. व्हाट इज पॉलीप्लॉइडी? इट इज द इंक्रीज इन अ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम. पूरा का पूरा सेट ही ज़्यादा हो जाए क्रोमोसोम का. ये कब होगा? जब टीलोफेज तक तो पहुंच गई है सेल डिवीज़न, लेकिन टीलोफेज के बाद उसमें साइटोप्लाज्म का डिवीज़न नहीं हो रहा, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही, तो एक ही सेल के अंदर दोनों सेट आ गए. ओके, तो बट दिस इज वेरी रेयर इन ह्यूमन बींग्स, बट इट इज़ वेरी कॉमनली सीन इन द प्लांट्स. नाउ लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. फर्स्ट एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम, also called as Mongolism. It is a trisomy of 21st chromosome. Trisomy है, 21st क्रोमोसोम 3 प्रेजेंट है उस बच्चे में, तो उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हुआ? 45A. A मीन्स ऑटोसोम, ऑटोसोम अब 45 हो गए, अदरवाइज 44 + XX होता है, तो नाउ हेयर 45A + XX तो फीमेल है, 45A + XY तो मेल है. 47 क्रोमोसोम्स आर देयर. इसके फीचर्स क्या हैं मोंगोलिज्म के? शॉर्ट स्टेचर्ड होता है, स्मॉल राउंड हेड, ब्रॉड फ्लैट फेस, फरोड बिग टंग एंड पार्शली ओपन माउथ. थोड़ा सा मुंह खुला रहता है. ब्रॉड पाम, हथेली चौड़ी होती है, विद कैरेक्टरिस्टिक सीमियन क्रीज. देखो नीचे वाले डायग्राम में हाथ में देखिए पूरी एक क्रीज नज़र आ रही है, एक लाइन नज़र आ रही है, सीमियन क्रीज कहते हैं इसको. मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स, फिंगर टिप्स पे बहुत सारे लूप्स नज़र आते हैं. ऊपर ये बनाए गए हैं डायग्राम में, डाउन सिंड्रोम लिखा हुआ है, हाथ पर लूप्स, फिंगर्स पर लूप्स हैं. रिटार्डेड फिजिकल ग्रोथ कम हो गई. साइकोमोटर यानी फाइन मोटर वर्क नहीं कर पाता बच्चा, कोई निडल में थ्रेड डालना है, पेंसिल से लिखना है, तो फाइन साइकोमोटर जो है रिटार्ड हो गया वर्क. तीसरा, मेंटल डेवलपमेंट भी कम हो जाता है. और लास्टली, ऐसे बच्चों में कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ भी देखी गई है बाय बर्थ. कॉन्जेनाइटल का मतलब बाय बर्थ जो डिजीज़ होती हैं. नेक्स्ट डिजीज़ आ जाइए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. ये मेल होता है पर्सन, और इसमें जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट में एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है. नॉर्मल मेल में XY होगा, बट क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाला जो पर्सन है उसमें XXY, तो टोटल नंबर तो 47 हो गया. तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट बना 44 ऑटोसोम प्लस XXY. डायग्राम में भी देख लीजिए, XXY एबनॉर्मल है और XY इज नॉर्मल. फीचर्स क्या होंगे? ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट होगा, बट द पर्सन में डेवलप सर्टेन फेमिनिन कैरेक्टर्स ऑल्सो. फीमेल के कैरेक्टर्स भी दिखाई देने लगते हैं. द पर्सन इज स्टेराइल, अनेबल टू रिप्रोड्यूस एंड मेंटली रिटार्डेड. XXY. टर्नर सिंड्रोम. द पर्सन इज अ फीमेल, और इसमें 2 X क्रोमोसोम की बजाय ओनली 1 X क्रोमोसोम इज देयर. जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या बना? 44 ऑटोसोम प्लस XO. टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर 45. फर्स्ट डायग्राम में नॉर्मल है, XX फीमेल नॉर्मल है, दूसरे में ओनली सिंगल X इज देयर. दिस इज टर्नर्स सिंड्रोम. फीचर्स क्या होंगे टर्नर सिंड्रोम के? द चाइल्ड इज स्टेराइल, द पर्सन इज स्टेराइल, अनेबल टू रिप्रोड्यूस
in the long run. Ovaries are rudimentary, non-functional, lack of secondary sexual characters, dwarfs होगा size में and mentally retarded होगा. So with this we have finished the genetic disorders. I think you must have understood. Do the questions given in the box in the form of MCQs. Try to solve it properly after watching the video. Wait for my next video. Subscribe the channel. Thank you very much. Thank you so much.